Hello, my dear kids. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. We are doing SST Class 8, and the name of your book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So, children, today we are going to do chapter number 8 of Geography, and the name of the chapter is India and the World. So, let's start with the chapter. Here you have to look at this picture and identify the person. He is known as the father of Indian history, Indian industry. So Indian industry के father इन्हें कहा जाता है. So you have to find out who is he. The manufacturing sector of the nation forms its backbone as it plays an important role in its economic development. So जो manufacturing sector होता है nation का, वो काफी बड़ा एक backbone फॉर्म करता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है in the economic development. In this chapter, we will understand the development of manufacturing industries through case studies of places in India, Japan and US. So अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्रू केस स्टडी पढ़ेंगे डिफरेंट कंट्रीज का जो बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So let's learn about the new topic, that is iron and steel industry. The production of iron and steel forms the foundation of industrialization in the country. So ये जो production है iron and steel का, ये क्या करता है, ये जो भी foundation industrialization का उसे बनाता है किसी भी कंट्री में. मीन्स अगर आपको किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है तो उसके पहले वहाँ पे आयरन एंड स्टील से का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. दिस बेसिक इंडस्ट्री मेक्स पॉसिबल द सेटिंग अप ऑफ वेरियस अदर काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और इस इंडस्ट्री की वजह से जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी सेट हो सकते हैं. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर there was a sharp rise in the demand of steel because of the urgent need for reconstruction of infrastructure. So second world war के बाद क्या हुआ, जो है स्टील की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना था, इसलिए जो है स्टील की डिमांड बढ़ गई. During the mid-1990s, the global steel industry saw a rapid and impressive pace of reconstructing and development. So जैसे mid-1990s आया, जो global steel industry था उसमें काफ़ी ज़्यादा rapid change आया और जो है it helped in the reconstruction and the development. The year 2002 witnessed high economic growth in countries. और 2002 में जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आया कंट्रीज़ में. इनके नेम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. सो इन कंट्रीज़ में 2002 में काफ़ी ज़्यादा बूम आया इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में. दिस लेड टू द फ्यूचर फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर स्टील इन द ग्लोबल मार्केट. और इसके बाद ही जो स्टील की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी global market. Now let's learn about Jamshedpur. Jamshedpur is one of the largest cities in eastern India. So in the eastern India में ये जमशेदपुर जो है सबसे बड़ी cities है, city है जहाँ पे आयरन स्टील जो बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, मीन्स यहाँ पे डेवलप किया जाता है. It is formerly called Sakchi and was renamed as Jamshedpur after the late Jamshedji Nausur वानजी टाटा. सो जमशेदजी टाटा के बाद इस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया था. हु इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है. इट इज इंडिया फर्स्ट प्लांट इंडस्ट्रियल सिटी, और ये इंडिया का सबसे पहला प्लांट और इंडस्ट्रियल सिटी है. इट रैंक्ड नेक्स्ट टू चंडीगढ़ in the quality of life index released by AC Nielsen Org-Mark survey group in 2006. So ये जो है चंडीगढ़ के बाद इसका रैंक आता है, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में
ना टाटा स्टील, जिसे जो है अर्नेस्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एज टिस्को, जिसे टिस्को दिखाया जाता है, द फर्स्ट ever privatized iron and steel plant set up in the Asia. So here you can see the Tata Iron and Steel Plant in Jamshedpur. This is a picture of that plant. So ये जो टिस्को था ये पहला प्राइवेटाइज आयरन एंड स्टील सेटअप था एशिया का, which established in the year 1907, जो 1907 में establish हुआ था by जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर, झारखंड. जमशेदपुर popularly known as the Steel City, जिसे Steel City के नाम से जाना जाता है, is the largest private sector steel plant in India and is well known for the production of high quality steel. So इसे जो है high quality steel बनाने के लिए जाना जाता है. To this day, it stands as the only private sector company among 10 other public sector industries located in the Chota Nagpur mineral belt. So आज अगर कहा जाए तो ये जो है it stands as the only private sector company. ये सिर्फ एक ऐसी private sector company है, बाकी दूसरी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसके मुकाबले, जो छोटा नागपुर मिनरल बेल्ट में लोकेटेड है. जमशेदपुर इज लोकेटेड इन द ईस्ट सिमबंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू and is surrounded by the Dalma Hills. Dalma Hills से surrounded है और छोटा नागपुर प्लेटू में located है. This industrial city is bordered by the rivers Subarnarekhas and Karkai in the northern and the western parts. So ये जो industry है is it's located here. The area surrounding it and are rich in minerals including iron ore, coal, manganese and lime. So ये जो एरिया है या इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ये सारे minerals abundant में है. Now factors favoring the location of the steel plant in Jamshedpur are the availability of iron ore and flux such as limestone, magnesium and dolomite found near the Sengbang district. So क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर्स हैं, फ्लक्सेस हैं, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं. द रिवर सुवर्णरेखा एंड करकई प्रोवाइड वाटर फॉर कूलिंग, वॉशिंग एंड अदर पर्पसेस. अब यहाँ पे दो रिवर्स हैं जो इन पर्पसेस के लिए यूजफुल हैं. It is well linked with rail, road and water transportation. यहाँ पे रेल, रोड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन तीनों ही easily available है and is close proximity to the कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट के पास है. जमशेदपुर is located in the heart of mineral belt. So जमशेदपुर जो है मिनरल बेल्ट के, आप कह सकते हो इसके हार्ट में रहता है. It provides a large domestic market and the Kolkata and Visakhapatnam ports provide good prospects for export. So ये जो है जमशेदपुर, ये जो है काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, और जो कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट्स हैं ये जो है यहाँ पे आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है. The steel produced here. This enterprise is started by Jamshedji was supported by the people who bought shares in the company. So जमशेद जी ने इसे स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री को, और जिसे काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया था जो इसके शेयर होल्डर्स हैं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट assured the quality of steel. ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे थी उसने जो है इसकी एश्योरेंस रखी कि जो यहाँ पे स्टील प्रोड्यूस हो रहा है वो क्वालिटी वाला. द वर्ल्ड wars increased the demand of steel and the company grew at a rapid pace. तो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जो डिमांड थी स्टील की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद ये कंपनी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई. Here you can see the picture of the river that helps this company to grow more. Now in those days iron and steel were used for manufacturing commercial vehicles, warfare weapons and other steel-based products.
उन दिनों ये इन सब कामों में आता था, ये स्टील जो यहाँ पे बनता था. In the 1940s, the R&D department plays an important role in developing steel plants, which were used in making armored vehicles used for the First World War. So 1914 की बात 40 की बात की जाए तो R&D जो डिपार्टमेंट था उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया था इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, जिसमें जो है आर्मर्ड व्हीकल्स बनाया जाता था. मीन्स आर्म से, हथियारों से भरे हुए व्हीकल्स बनाए जाते थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. सिंस देन द कंपनी हैज बीन एट द forefront of developing new technologies and products. उसके बाद जो ये कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज इसने डेवलप कर ली और प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लिया. द कंपनी प्रोवाइड्स प्री-फिनिश्ड स्टील बिल्डिंग envelopes to the construction industry for use in a wide range of commercial, educational, residential and industrial building. ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है काफ़ी सारा प्री फिनिश्ड स्टील बिल्डिंग एनवेलप्स जो हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन में, और काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल, एजुकेशनल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वहाँ पे आपको मिल सकता है. अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड टाटा मोटर्स. जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे टाटा मोटर्स, जिन्हें पहले जो है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भी कहा जाता था, जिसे टेल्को कहा जाता था, विच मैन्युफैक्चर्स हेवी व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन. ये क्या करती है, ये कंपनी हेवी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है. टुडे टाटा स्टील इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर. अब वर्ल्ड के सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है टिस्को. द कंपनी वॉज ऑल्सो one of the first to take the step towards industrial research and development in India. So इस कंपनी ने अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं, टाटा टिन प्लेट्स भी बनाए हैं, एंड मैन्युफैक्चर्ड टिन प्लेट्स. पिट्सबर्ग इन यूएसए. अभी हमने पढ़ा इंडिया के बारे में जिसमें जमशेदपुर था, अब यूएसए में पिट्सबर्ग है. Pittsburgh is called the steel town in the USA. It is located in the Pennsylvania state. The city is located on the confluence of the Allegheny River and the Monongahela River. The Ohio River starts from this meeting point. Pittsburgh is highly accessible place for the Great Lakes and the important trade route between the east and the west. सो पिट्सबर्ग जो है एक स्टील टाउन है यूएसए का, और इसके आसपास बहुत सारे रिवर्स हैं. ये हाईली एक्सेसिबल प्लेस है जहाँ जो कि जाना जाता है अपने ग्रेट लेक्स के लिए, और यहाँ का जो ट्रेड रूट है वो डेवलप करता है. ये वो जो है ईस्ट और वेस्ट के बीच में है. द पिट्सबर्ग लेक एरी रीजन हैज अ नंबर ऑफ industrial towns which have developed various engineering goods industries depending upon the availability of steel and Pittsburgh. Pittsburgh became the iron and steel capital of the world, and number of towns have developed around Pittsburgh such as Wheeling, Youngstown, Barron, Cleveland, etc. They also produce steel. So जो Pittsburgh Lake है जिसका नाम है एरिक, वो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जो डेवलप हुए थे, डेवलप्ड वेरियस इंजीनियरिंग गुड्स. इन टाउन्स ने काफ़ी सारे इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है स्टील की वो काफ़ी ज़्यादा गुड क्वांटिटी में है. पिट्सबर्ग जो है आयरन स्टील कैपिटल बन गया पूरे वर्ल्ड का. यहाँ पे कई सारे टाउन्स हैं जो डेवलप हुए थे पिट्सबर्ग के पास में, और ये भी जो टाउन्स हैं ये स्टील को प्रोड्यूस करते हैं. द पिट्सबर्ग स्टील रीजन गेट्स इट्स आयरन और सप्लाई फ्रॉम द मेशाबी रेंज. सो ये जो पिट्सबर्ग स्टील रीजन है यहाँ पे आयरन और का जो सप्लाई है वो मेशाबी रेंजेस से मिलता है, वाया द ग्रेट लेक्स एंड कोल फ्रॉम द नॉर्थ Appalachian coal fields. The steel mill in Pittsburgh started production as early as
1924. So 1924 से यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट है. Today most of the steel mills have become old and have closed down. अब जो है आज के टाइम में ज़्यादातर जो स्टील मिल्स थे वो क्लोज हो चुके हैं क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं. The remaining steel mills are now along the river coast. और जो बचे हुए स्टील मिल्स हैं वो रिवर के किनारे हैं. The finished products from the steel plant in Pittsburgh are taken either by land routes or by lake route to the market. So अब जो भी finished product है वो इन दोनों रूट से लेके जाया जाता है मार्केट तक. A large number of factories in and around Pittsburgh use steel from the steel mills of Pittsburgh. So इस जगह के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, वो सब यहाँ से आती हैं, स्टील को लेके जाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग रेड रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरीज, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स या इम्प्लीमेंट्स, रेल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, फैक्ट्रीज आती हैं और यहाँ से स्टील लेके जाती हैं. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Textile industry involves the production of yarn and cloth apart from designing and manufacturing of clothing and their distribution. So ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी सारा यार्न जो है प्रोड्यूस किया जाता है और क्लोथ को प्रोड्यूस किया जाता है. ये आप देख सकते हो कि यार्न जो स्पन है इसमें एंड इसमें जो है क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग की जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. The raw material used by textile industry may be natural or synthetic fiber. So जो भी raw material यहाँ पे यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज में या तो वो नेचुरल हो सकता है या फिर वो सिंथेटिक हो सकता है. मैनचेस्टर ऑफ द अर्थ मीन्स अहमदाबाद. अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. अहमदाबाद इन गुजरात इज अमंग द 10 लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया. इंडिया के 10 लार्जेस्ट सिटीज हैं उसमें से एक है. It is located on the bank of the Sabarmati River. Sabarmati River के बैंक पे located है. It is famous for its textile industry which dates back to the 19th century. जो 19th century से शुरू है. When the city and the industry were established under British rule. जब ये city और जो industry था वो British rule के अंदर था. Here you can see the picture of city of Ahmedabad. Textile mills employs thousands of people from across the state. So state के आसपास के काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके employment ढूंढते हैं और they are employed. The cotton garments that were manufactured here were exported across the world. So जो भी cotton के garments यहाँ पे use किए जाते हैं वो export किए जाते हैं पूरे world में. The prosperity of the industry was the most important aspect of the city's economy. जो प्रॉस्पर्टी है इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है सिटी के इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी का. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अहमदाबाद वाज नेम्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द अर्थ. सो इसलिए जो है अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है. Ahmedabad is the second largest cotton textile producer in India. India का second largest cotton textile producer है after Mumbai. Mumbai and Ahmedabad are compared to be the twin cities of Liverpool. इन्हें twin cities Liverpool का twin cities कहा जाता है and Manchester in England and respectively. The first textile mill in Ahmedabad was set up in 1859. जो पहला टेक्सटाइल मिल था अहमदाबाद का वो 1859 में स्टार्ट हुआ था. At present 75 mills out of the total of 120 mills in Gujarat are located here. So 120 mills में से 75 mills जो गुजरात के 120 mills हैं उसमें से 75 mills यहाँ अहमदाबाद में located हैं. Textile industry in Osaka. Osaka in Japan is well known for its textile industry and was called the Manchester of the Orient. So it's a Manchester of the Orient कहा जाता है. It has a large number of textile mills that use modern technology in the production process. So यहाँ पे भी काफ़ी सारे textile mills हैं जो modern technology को use करते हैं production में and it is emerging as a center of international fashion. और इसे भी center of international fashion कहा जाता है. Recycling of clothes is a new trend here.
क्लोथ्स को रिसाइकल करना एक नया ट्रेंड है यहाँ का। मेनी मिल्स इन ओसाका रिसाइकल ओल्ड क्लोथ्स टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल एंड चीप प्रोडक्ट्स। सो काफी सारे जो मिल्स हैं ओसाका में वो क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं पुराने कपड़ों को और उनसे नए मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और चीप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओसाका लाइक अहमदाबाद हैज आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग कॉटन। यहाँ का भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी अच्छा है कॉटन ग्रो करने के लिए। प्लेंटी ऑफ चीप लेबर इज अवेलेबल हियर, और यहाँ पे जो चीप लेबर है काफी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। द योडो रिवर सप्लाइज वाटर टू ओसाका, और जो यहाँ का योडो रिवर है इट सप्लाइज वाटर टू इट। Now let us now examine how the textile industry in Ahmedabad and Osaka differ. अब इन दोनों जगह की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसे डिफरेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द चीफ पावर रिसोर्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, बट द वन इन ओसाका यूजेस कोल। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है अहमदाबाद में, लेकिन ओसाका में कोल यूज किया जाता है। अहमदाबाद लाइज इन द कॉटन ग्रोइंग एरिया and has its own source of raw material, but Osaka needs to import cotton from USA, India, China, Egypt and Sudan. So अहमदाबाद खुद का कॉटन ग्रो करता है, इसलिए वो इजिली उसके पास सोर्सेस है रॉ मटेरियल के, बट ओसाका को इंपोर्ट करना पड़ता है। अहमदाबाद हैज अ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स, बट ओसाका हैज हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड लेबर फोर्स। सो अहमदाबाद में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है, बट ओसाका में हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर फोर्स है। द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द टेक्सटाइल मिल ऑफ अहमदाबाद आर मेनली सप्लाइड टू द डोमेस्टिक मार्केट। सो जो भी फिनिश्ड गुड होता है वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया जाता है अहमदाबाद की, बट ओसाका में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सो ये जो ओसाका है ये अपने प्रोडक्ट्स को एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग इन अहमदाबाद आर डन इन सेपरेट सेक्शंस in the same industrial unit, but in Osaka spinning and weaving are done in separate industrial units. So एक ही इंडस्ट्रियल यूनिट के अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे अहमदाबाद में स्पिनिंग एंड वीविंग होता है, वीविंग होता है, बट ओसाका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज IT. Information technology refers to anything related to computing technology such as networking, hardware, software, the internet, or the people working with any of these technologies. So information technology होता है जो है उसमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बात होती है, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इंटरनेट और पीपल वर्किंग ऑन दीज technologies, these all are included in this. Information technology has become a part of the daily lives of people living in the modern world. So आज के इस modern world में जो लोग हैं वो इसके part बन चुके हैं। Business corporations need IT departments to provide tech support, security testing, network maintenance and perform device management. So जो business corporations हैं उन्हें जो IT डिपार्टमेंट के लिए ये सारी चीज़ें जो है चाहिए होती हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट कम्स अंडर हार्डवेयर इंक्लूड्स सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट्स लाइक फोन सिस्टम, राउटर, सर्वर्स एंड लैपटॉप्स। सो ये जो टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर के अंदर आती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर एट अ वर्कप्लेस। वर्कप्लेस पे कैसे कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है। मेडिकल साइंस यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू चेक रिकॉर्ड्स। मेडिकल साइंस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, कैसे, अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, पेशेंट हिस्ट्री को, एंड दे आर प्रिस्क्राइब डोज एंड टू मूव अकॉर्डिंगली। So satellites are connected with agriculture to predict monsoon and smog. सो सैटेलाइट्स भी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ मिलके मॉनसून और स्मॉग को प्रोटेक्ट करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड मास डाटा कलेक्शन। सो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसने भी मास डाटा कलेक्शन को एनेबल कर रखा है। लैंड सर्वे यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, सीड प्लांटिंग, वाटर
इरिगेशन एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो इन सारे फील्ड्स में जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया जा रहा है। वी विल नाउ स्टडी हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ फ्लरिश्ड इन इंडिया एंड इन द यूएसए। अब हम पढ़ेंगे कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया और यूएसए में फैल चुका है। सिलिकॉन वैली। Silicon Valley lies in Northern California in the USA, where some of the world's largest technology corporations have established. So Silicon Valley जो है Northern California से लेके USA तक फैला हुआ है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। Silicon Valley continues to be the leading center of IT innovation. Silicon Valley जो है एक लीडिंग सेंटर है IT इनोवेशन का एंड डेवलपमेंट का, and accounting for 1/3 of the venture capital investment in the US. और ये जो है 1/3 जो venture capital investment है it has that. During the 1940s and 1950s, Frederick Terman, the Dean of Engineering and Provost at Stanford University, encouraged faculty and graduates to start their own companies. सो 1940s और 1950s में जो फ्रेडरिक टर्मन थे उन्होंने अपने जो डीन थे इंजीनियरिंग और प्रोवोस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपने फैकल्टी को और जो ग्रेजुएट्स थे उनसे बोला कि अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करो। ही सपोर्टेड वेरियस फर्म्स एंड सून सिलिकॉन वैली ग्रू अराउंड द स्टैनफोर्ड कैंपस। सो अब धीरे धीरे सिलिकॉन वैली जो है स्टैनफोर्ड कैंपस के आसपास ग्रो करने लगी। Because of the initiatives of Frederick Terman, he is often called as a father of Silicon Valley. So इसी के वजह से इन्हें जो है फ्रेडरिक टर्मन को फादर ऑफ सिलिकॉन वैली कहा जाता है। Between 1955 to 1985, technology, research and development at Stanford University made industrial innovation possible with the support of private corporation. So इस टाइम पे जो है इंडस्ट्रियल इनोवेशन जो है काफ़ी जो है पॉसिबल हो चुका था प्राइवेट कॉर्पोरेशन के सपोर्ट से। इट वॉज इन सिलिकॉन वैली दैट द सिलिकॉन बेस्ड integrated circuits, the microprocessors, the microcomputers, among their other key technologies were developed. So इस टाइम पे ही, इस टाइम की बात है, सिलिकॉन वैली में ही क्या हुआ था, जो सिलिकॉन बेस्ड इंडस्ट्रियल सर्किट्स थे वो डेवलप किए गए, माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए गए, माइक्रो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए और बहुत सारे की टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया एंड डेवलप किया गया। फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली। सो कुछ फैक्टर्स हैं जो सिलिकॉन वैली के जो कुछ डेवलपमेंट हैं उसमें हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल लीडरशिप ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इनोवेशन made due to new technological knowledge. So institutional leadership of Stanford University. So Stanford University का जो institutional leadership था उसने काफ़ी ज़्यादा help किया था innovation को बढ़ाने में, जिससे new technologies develop हुई। A large pool of skilled engineers and scientists from major universities in the area, काफ़ी सारे जो स्किल्ड इंजीनियर्स थे और साइंटिस्ट थे वो इसके एक बहुत बड़े पार्ट बन गए। जेनरस फंडिंग फ्रॉम एन अनअश्योर्ड मार्केट एंड द डिफेंस डिपार्टमेंट। सो फंडिंग स्टार्ट हो गया, लोगों ने जनरसली फंडिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगी। डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कैपिटल फर्म्स जो है डेवलप किए गए ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु, formerly known as Bangalore, is the capital of Indian states of Karnataka. So कर्नाटका का ये कैपिटल है and it is located on the Deccan Plateau on the southern east part of Karnataka. ये कर्नाटका के southern east part में है and it is famous center of India's information technology sector. So IT का एक बहुत ही important part है ये। It is among the top 10 preferred entrepreneurial locations in the world. Bengaluru is known as the Silicon Valley of India. बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है because of its position at the
national leading IT exporters. The Electronic City is one of the India's largest electronic industrial parks spread over 332 acres. So इतना दूर है ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी, लोकेटेड है इतना बड़ा एंड जस्ट आउटसाइड बेंगलुरु, और ये बेंगलुरु के जस्ट बाहर है. इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैज़ world class infrastructure which has made it home to major ITES companies such as Bosch, Wipro, Mahindra, Satyam, Hewlett Packard, Infosys, HCL Technologies, Siemens, etc. So ये सारी जो IT कंपनीज़ हैं ये यहाँ पे जो है फ्लरिश कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं with the growth of the electronic industry. The development of the computer hardware and software formed one of the third part of the electronic industry. So जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसे वैसे जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो भी डेवलप कर रहे हैं. The 330-acre park of Karnataka was converted into a software technological park. जो 330 एकड़ पार्क था कर्नाटका का उसे जो कन्वर्ट किया गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क में. And Bengaluru became the center of many public sector undertakings such as Hindustan Machine Tools, Hindustan Aeronautics, Indian Telephone Industries, Indian Space Research Organizations, etc. Now let's revise what we have learned. The manufacturing sector is the bone of the nation's economy. Tesco in Jamshedpur was the first industry that was set up in India. It was located near the iron deposits in the rain. Jamshedpur is popularly known as the steel city. Textile mills employed thousands of people from across the state. Mumbai and Ahmedabad are known as Liverpool and Manchesters of India respectively. Osaka in Japan is called the Manchester of the Orient. Silicon Valley in the USA led the innovation of the field of information technology and computers. Now children, let's do the question answer here. Name India's first planned industrial city and give its importance. So the first planned industrial city of India is Jamshedpur, and you have to write down about its importance. It's important for manufacturing iron steel. Describe the importance of Tata Steel. Tata Steel के क्या क्या importance है that you have to write. And what is the location of Tisco? Where is it located? That you have to write. What are the processes involved in the textile industry? Textile industry में क्या क्या process carry on किए जाते हैं? That is to be written. What are the importance? What is the importance of IT in our daily life? IT का हमारी daily life में क्या importance है? Write a paragraph on cotton textile industry in Ahmedabad. So Ahmedabad में जो cotton textile industry है, why is it important? That you have to write. Describe the importance of Pittsburgh as a center, steel center of USA. Compare the textile industry of Ahmedabad and Osaka. So Ahmedabad और ओसाका के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसमें आपने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े थे. You have to compare them. And how is the electronic city of Bengaluru different from Silicon Valley in the USA? So electronic city जो है बेंगलुरु का वो कैसे different है Silicon Valley से USA के? This is to be written. What factors lead to the development of the Silicon Valley? So कौन कौन से factors हैं जो help करते हैं development में Silicon Valley के? This is to be written. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it. You have to read the chapter again and complete the given exercises. I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.